Hello friends, we will be discussing part 3 of the chapter, like unit 3 ka chapter 1, the brief history of Madhya Pradesh. इसका part 3 वीडियो है ये. अगर आपने पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख लीजिए, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द शुंग डायनेस्टी, द गुप्ता डायनेस्टी. ये सब जो था ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. So now we come to the history of Madhya Pradesh during the medieval period. Medieval period की history हम discuss करेंगे and I will try to cover even the modern period if possible अगर ये video लंबा नहीं हुआ ज़्यादा तो. So coming to the medieval period in 528, Yashodharman of Malwa, he defeated the Huns who were invading from the north and northwest and wanted to extend their empire. So Yashodharman of Malwa defeated the Huns and Huns ka expansion was ended by Yashodharman. In this way, Malwa re-emerged from the disintegrating Gupta empire as a separate kingdom. So इससे हमें पता चलता है कि Gupta empire का part था Malwa, but after Yashodharman of Malwa defeated Huns who were invading from northwest, जब उनको हरा दिया, so this area of Malwa emerged as an empire, as a separate kingdom after disintegrating from the Gupta empire. ठीक है? That is all when we have the introduction regarding the medieval period. Now coming to the Pushyabhuti dynasty. These names of the dynasties are very important. So here we have the Pushyabhuti dynasty. Pushyabhuti dynasty के सबसे important ruler का नाम है हर्षा. So if we talk about Harshvardhan belonged to the Pushyabhuti dynasty and it was during the 7th century. The region was conquered by Harsha from Thaneshwar. ठीक है? Harsha was responsible for reuniting northern India. He was responsible for reuniting northern India before his death. ठीक है? अगर हम देखें, so Harsha was responsible for reuniting the northern India for a few decades. Now we come to the Rashtrakoot dynasty. अब हम पुष्यभूति के बाद another dynasty की बात करते हैं, which is the Rashtrakuts. So अगर ये मैप देखा जाए, here we have the Gurjar Pratihars. ये राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ माउंट आबू है. ये MP वाला एरिया है, you have the Malwa, Ujjain and Dhar region. You have the Parmars here, the Parmar dynasty here. Then you have Rashtrakuts. You have Kannauj here, पाला रूलर्स. यहाँ पे आपके ईस्टर्न चालुक्याज हैं, यहाँ आपके चालुक्याज हैं. और अगर हम नीचे देखें, सो यू हैव पल्लव्स ऑफ कांचीपुरम, देन यू हैव द चोला चेराज एंड द पांड्याज. ये 3 एम्पायर यहाँ पे जो एक्सट्रीम साउथ के हैं. ठीक है? आप हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी हैं वो है राष्ट्रकूट्स, पालाज एंड गुर्जर प्रतिहार्स. कौन कौन से? राष्ट्रकूट्स, पालाज and the Gurjar Pratihars. These 3 are very important as of now. ये यहाँ पे mentioned है. ठीक है? Kannauj triangle की बात होती है यहाँ पे. This is known as the Kannauj triangle. Now, when we talk about the Rashtrakoot dynasty, in 786, the region was captured by the South Indian dynasty, Rashtrakoot kings of the Deccan. हमें इस पीरियड में ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रकूट किंग्स थे डेक्कन के, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. And this period this period saw the triangular struggle for power. यहाँ पे एक triangular struggle for power था. ये triangular struggle was between the Palas, Pratihars and the Rashtrakuts. ये जो triangular struggle है, सी मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है, ये जो triangular struggle है between the Palas, Pratihars and the Rashtrakuts, ये इस region में था. So the Rashtrakuts appointed the Rajput clan of Parmar rulers as the governor of Malwa. अब जो ये जो Rashtrakuts थे, so these Rashtrakuts ये जो थे, इनने परमार रूलर्स, जो धार के मालवा रीजन के परमार रूलर्स थे, इनको बनाया गवर्नर ऑफ मालवा. तो हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट्स ने ही परमार्स को यहाँ पे सेट किया. So the Rashtrakuts appointed the Rajput clan of Parmar rulers as the governor of Malwa. ठीक है?
अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो था यहाँ पे दैट वाज द ट्रायंगुलर स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन द पालास, प्रतिहार्स एंड द राष्ट्रकूट्स. ठीक है. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेडिवल पीरियड सॉ द राइज ऑफ द राजपूत्स. कौन कौन से राजपूत? सच एज द परमार्स ऑफ मालवा एंड द चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड. तो यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दे आर द टू एरियाज, द टू डायनेस्टीज, द टू areas of power that become important are the Chandelas and the Parmars. So Chandelas of Bundelkhand. This region is your area of Bundelkhand. चंदेल जहाँ पे चंदेल रूलर्स थे. ठीक है. एंड परमार्स ऑफ ये जो आपका धार मालवा रीजन वाला है ये मालवा के आपके परमार रूलर्स थे. ठीक है. सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी. गुर्जर प्रतिहार कहाँ पर है? गुर्जर प्रतिहार हमने देखा इस एरिया में है. सो इफ यू टॉक अबाउट द गुर्जर प्रतिहार, आई एम सो सॉरी, या सो इफ यू टॉक अबाउट द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, दिस डायनेस्टी रूल्ड सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करते हैं फ्रॉम मिड 7th to 11th सेंचुरी, ये जो इतना बड़ा टाइम पीरियड है मिड 7th to 11th सेंचुरी, इस टाइम पे गुर्जर प्रतिहार रूल्ड इन द सेंट्रल इंडिया. ठीक है. दे रूल्ड फर्स्ट एट उज्जैन. सबसे पहले इनने उज्जैन से रूल किया एंड देन लेटर एट कन्नौज. सो अगर हम देखते हैं कि 7th to 11th सेंचुरी वाला जो पीरियड है सेंट्रल इंडिया का, दैट इज मेनली डोमिनेटेड बाय द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी. एंड सबसे पहले उनने उज्जैन से रूल किया एंड देन लेटर फ्रॉम कन्नौज. ठीक है. अब गुर्जर प्रतिहार की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, so the Gurjar Pratihars prevented Arabs from moving east of the Indus River. तो अगर ये इंडिया के हम नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर्स की बात करें, so the Gurjar Pratihars here prevented the Arabs from moving to east. यहाँ पे इनने अरब को स्टॉप किया. So the Gurjar Pratihars became the most powerful dynasty in the northern India under Nagbhat II. ठीक है. नागभट्ट 2 के टाइम पे सबसे आपकी पावरफुल जो डायनेस्टी थी दैट वाज द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी अंडर नागभट्ट 2. एंड हिज ग्रैंडसन वाज मिहिर भोज. मिहिर भोज. ठीक है. नागभट्ट का ग्रैंडसन कौन था? मिहिर भोज. अंडर भोज एंड हिज सक्सेसर महेंद्र पाल I, the Pratihar Empire reached its peak of prosperity and power. So अगर हम यहाँ पे प्रतिहार रूलर्स, प्रतिहार एम्पायर के रूलर्स की बात करें, so we have नागभट्ट 2, नागभट्ट's grandson मिहिर भोज and मिहिर भोज का सक्सेसर महेंद्र पाल. So which three rulers become important in the Pratihar Empire? These are the three rulers. नागभट्ट 2, मिहिर भोज एंड महेंद्र पाल I. इनके टाइम पे द प्रतिहार एम्पायर, द गुर्जर प्रतिहार एम्पायर रीच्ड द पीक ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड पावर. सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन, प्रोस्पेरिटी, पावर, पैसा जो था वो इन तीनों के टाइम पे था. ठीक है. द एक्सटेंट ऑफ दिस इट्स टेरिटरी राइवल्ड दैट ऑफ द गुप्ता एम्पायर. सो इनकी टेरिटरी इतनी बड़ी थी कि हम इसको थोड़ा बहुत गुप्ता एम्पायर से कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. एंड दिस एक्सपेंशन वंस अगेन ट्रिगर्ड द ट्राइपार्टाइट पावर स्ट्रगल फॉर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सो हमारे लिए गुर्जर प्रतिहार का एरिया कि वो कहाँ पे रूल करते थे एंड द नेम ऑफ द थ्री किंग्स नागभट्ट 2, मिहिर भोज एंड महेंद्र पाल I, दीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब हमने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी तो देख ली. We saw the Gurjar Pratihars, we saw the Pushyabhutis and the Rashtrakuts. प्रतिहार्स देख ली, राष्ट्रकूट देख ली. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपकी परमार डायनेस्टी की. परमार डायनेस्टी, परमार्स ऑफ मालवा. उज्जैन और धार के पास मालवा वाले एरिया में वी हैड द परमार डायनेस्टी. सो कमिंग टू द परमार डायनेस्टी, परमार्स मेड धार देयर कैपिटल. अगर हम राष्ट्रकूट्स की, अगर हम गुर्जर प्रतिहार्स की बात करें तो द फर्स्ट रूल फ्रॉम उज्जैन हमने यहाँ देखा था एंड लेटर एट कन्नौज. ठीक है. ये गुर्जर प्रतिहार्स थे. बट इफ यू टॉक अबाउट द परमार डायनेस्टी, मेनली द परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा, या फिर अगर हम धार बोलें बिकॉज दे रूल्ड फ्रॉम धार. ठीक है. द डायनेस्टी, द मोस्ट वेल नोन किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वाज किंग भोज. किंग भोज यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट, इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे. ठीक है. ही वॉज अ ग्रेट पॉलीमैथ फिलोसोफर किंग ऑफ मिडीवल इंडिया. अब किंग भोज की जब हम बात करते हैं, सो वी कैन नॉट फॉरगेट द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश जो पहले भोजपाल के नाम से जानी जाती थी, एंड द प्रेजेंट डे भोपाल.
ठीक है, ये जो भोजपाल नाम था ये भोज किंग भोज के नाम पर ही दिया गया था। सो वी नो दैट ये जो किंग भोज है ये परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं जिनकी कैपिटल धार थी। Now we'll read about the Chandels, Kalchuris, Bundelas and Bagels a bit later. Before that, we have more to discuss on Bhoj. So he talked about philosophy, he talked about poetry, Raja Bhoj. He also talked about medicine, veterinary science, phonetics, yoga and archery. And under his rule, but he was a very great ruler. भोपाल की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर भोपाल की स्पेसिफिकली आप बात करेंगे, सो इवन द एयरपोर्ट, द राजा भोज एयरपोर्ट, उनका मतलब द एयरपोर्ट का नाम भी जो है वो राजा भोज के ऊपर पड़ा हुआ है। सो राजा भोज बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फिगर in the context of the history of Bhopal and the history of Madhya Pradesh as a whole. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अंडर हिज रूल मालवा बिकेम एन इंटेलेक्चुअल सेंटर। अब ही वाज सच अ टैलेंटेड पर्सन, फिलोसफी, पोएट्री, मेडिसिन, वेटनरी साइंस सबकी बात कर रहे हैं। सो अंडर हिज रूल ही वाज अ परमार किंग एंड परमार्स बिलोंग टू द मालवा रीजन। सो अंडर हिज रूल मालवा बिकेम एन इंटेलेक्चुअल सेंटर, ये एक इंटेलेक्चुअल सेंटर बन गया। ठीक है, एंड राजा भोज के जो सक्सेसर्स थे, हिज सक्सेसर्स रूल्ड अंटिल अबाउट 1305 व्हेन मालवा वाज फाइनली कॉन्कर्ड बाय द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंडर आने तक राजा भोज के सक्सेसर्स ने और अदर परमार रूलर्स ने मालवा में एंड स्पेसिफिकली इस एरिया में रूल किया। ठीक है, now we talk about Dilawar Khan Ghuri. Dilawar Khan Ghuri was the founder of the Malwa Sultanate. Who was the founder of the Malwa Sultanate? Dilawar Khan Ghuri. ठीक है, he was initially the governor of Delhi Sultanate in Malwa but asserted his independence. So वो basically पहले Delhi Sultanate के अंडर था। ही वॉज द गवर्नर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन मालवा रीजन। मालवा रीजन में दिल्ली सल्तनत का जो रूल था दैट वॉज लेड बाय दिलावर खान घुरी, बट ही लेटर असर्टेड he later got his kingdom away and he asserted his independence in 1392 and he shifted the capital from Dhar to Mandu. अभी हम बात करते हैं परमार रूलर्स की। जब तक हमने देखा सो परमार रूलर्स रूल्ड फ्रॉम धार। ठीक है, बट जैसे ही हम देखते हैं कि परमार रूलर्स भोज के जो सक्सेसर्स थे वो दिल्ली सल्तनत के अंडर आ जाते हैं एंड दिल्ली सल्तनत इज रूलिंग इन द मालवा रीजन अंडर the name of Dilawar Khan Ghuri, who finally asserts his independence. So Dilawar Khan Ghuri now shifts his capital कहाँ से? धार से मांडू में। धार से मांडू कैपिटल किसने शिफ्ट की? So we must remember Dilawar Khan Ghuri was the one who shifted the capital from Dhar to Mandu. And he renamed the capital Shadiabad. Shadiabad. Shadiabad matlab the city of joy. And after his death, he was succeeded by his son Alp Khan, who assumed the title of Hoshang Shah. तो हमें क्या पता चलता है अगर हम देखें दिलावर खान घुरी के बाद you have Alp Khan coming to the throne, his successor, his son Alp Khan, and Alp Khan finally assumes the title of Hoshang Shah. होशांग शाह पे एक क्वेश्चन भी आया है जहां तक मुझे प्रीवियस ईयर मतलब एमपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस याद हैं। सो होशांग शाह बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो हमें ये याद रखना है कि घुरी के बाद घुरी शिफ्टेड हिज कैपिटल, दिलावर खान घुरी शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम धार टू मांडू एंड रीनेम्ड द सिटी द कैपिटल एज शादियाबाद विच इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ जॉय। एंड आफ्टर हिज डेथ दिलावर खान घुरी की डेथ के बाद हिज सन, हिज सक्सेसर वाज अल्प खान हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ होशांग शाह। Hoshang Shah. Now the Ghuri dynasty, which was founded by Dilawar Khan, was replaced by the Khalji dynasty founded by Mahmud Shah I. ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि कैसे जल्दी जल्दी डायनेस्टीज चेंज हो रही हैं। वी इनिशियली हैड द परमार रूलर्स, देन केम द दिल्ली सल्तनत ऑफ दैट एरिया व्हिच वाज रूल्ड अंडर दिलावर खान घुरी, देन वी हैव हिज सक्सेसर होशांग शाह कमिंग अप एंड ये घुरी डायनेस्टी व्हिच वाज फाउंडेड बाय दिलावर खान घुरी वाज नाउ रिप्लेस्ड बाय द खलजी डायनेस्टी। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ द खलजी डायनेस्टी? इसको किसने फाइंड किया था? इट वाज महमूद शाह I. So the founder of Khalji dynasty was Mahmud Shah I, and the Khalji dynasty founded by him ruled over Malwa till 1531. Mahmud Shah I becomes important because he was the founder of the Khalji dynasty. Okay, so the last ruler
Mahmud Shah II. Mahmud Shah I was the founder. Now we come to Mahmud Shah II. Mahmud Shah II की अगर हम बात करें, so he surrendered to Bahadur Shah, the Sultan of Gujarat, after the fort of Mandu fell to Bahadur Shah. तो हम देख रहे हैं कि फाइनली जो खलजी डायनेस्टी, महमूद खलजी महमूद शाह वन की जो डायनेस्टी थी, इसके बाद महमूद शाह टू फाइनली सरेंडर टू बहादुर शाह. बहादुर शाह कौन? बहादुर शाह द सुल्तान ऑफ गुजरात. कब सरेंडर किया? इन 1531, जब द फोर्ट ऑफ मांडू फाइनली फेल टू बहादुर शाह. तो महमूद शाह टू फाइनली सरेंडर्ड. नाउ इफ वी टॉक इन 1542, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शेर शाह सूरी कम्स इनटू प्ले. शेर शाह सूरी कॉन्कर्ड द किंगडम. शेर शाह सूरी ने इस टाइम पे he conquered the kingdom and appointed शुजात खान as the governor. ये सारी माइनर डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हाईलाइटेड एरियाज हैं वो हम देख लेते हैं. सो हम देखते हैं शेर शाह सूरी यहाँ पे आ जाते हैं. सन बाज बहादुर declared himself independent in 1555. Now we see that in 1561, Akbar की army led by Adham Khan and Pir Muhammad Khan attacked Malwa and defeated Baz Bahadur इन द बैटल ऑफ सरंगपुर. तो इस पूरे पैराग्राफ में जो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है वो बस ये हो जाती है कि 1561 में अकबर की आर्मी that was led by Adham Khan and Pir Muhammad Khan. Adham Khan और Pir Muhammad Khan who led Akbar's army, they attacked Malwa and they defeated बाज बहादुर. बाज बहादुर को उनने डिफीट कर दिया, हरा दिया बाज बहादुर को. कहां पर? इन द बैटल ऑफ सरंगपुर. तो सरंगपुर की बैटल बिकम्स इंपॉर्टेंट 1561 में. अगर दो लाइन में समराइज करें तो 1561 में अकबर की आर्मी लेड बाय अधम खान एंड पीर मोहम्मद खान अटैक्ड मालवा, एंड मालवा को अटैक करने के बाद दे डिफीटेड बाज बहादुर, एंड दिस बैटल वाज द बैटल ऑफ Sarangpur. So Baz Bahadur remained a fugitive at a number of courts until he finally surrendered. So हमने ये बात करी, ये जो पीरियड है मिडीवल वाला, इसमें 1542 में शेर शाह सूरी आए. 1542 के बाद वी आर टॉकिंग अबाउट 1561 अकबर की आर्मी, एंड 1561 के बाद वी आर कमिंग टू 1700. डायरेक्टली हम 1700 पर आ रहे हैं. 1700 की अगर हम बात करें तो हम इस टाइम पीरियड पे आ रहे हैं. एज द मुगल स्टेट वीकेंड. मुगल स्टेट कब वीकन हुआ था? सो औरंगजेब की अगर हम बात करें, सो औरंगजेब डाइड इन 1707. नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, यहाँ से हमारे वीक मुगल रूलर्स आने लगे थे. यहाँ से हमारा मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन. सो आफ्टर 1700 एज द मुगल स्टेट वीकेंड, हमारे मराठाज पावर में आ गए. मराठाज केम टू पावर इवन इन मालवा. Malwa region में भी we had the Marathas coming up. Now subsequently we had the 3 Maratha Sardars who established their hold in the Malwa region. ये मराठा सरदार्स थे, ये आप याद रखिए. So MP की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में we have the Scindias ruling there. We have not presently but हाँ अभी भी हमारी सिंधिया डायनेस्टी नाम से चलती है. If we talk about the इंदौर वाला एरिया, इंदौर वाले एरिया में we have the Holkars. एंड अगर हम अभी भी बात करें धार की, so धार वाले एरिया में we still have the परमार्स और the पवार्स. So 3 Maratha Sardars established their hold. They were the Scindias of Gwalior, Holkars of Indore and Pawars और परमार्स in धार. So ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. This was all regarding the medieval period, the history of Madhya Pradesh in the medieval period. Now we come to history of MP during the modern period. Let me change the color. Okay. So अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें जस्ट अ सेकेंड. सो यहाँ से हमारा मुगल रूल चालू होता है. अगर हम मुगल मॉडर्न पीरियड में अगर हम स्टार्ट करें तो हम मुगल रूल से स्टार्ट करेंगे. अभी हमने बैटल ऑफ सरंगपुर देखी थी. सरंगपुर, या इट वाज द बैटल ऑफ सरंगपुर. अकबर की आर्मी डिफीटेड बाज बहादुर की आर्मी इन मालवा इन द बैटल ऑफ सरंगपुर. ठीक है, दिस वॉज इन 1561. अब 1561 के बाद अगर हम बात करें, सो अकबर ब्रॉट मोस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश अंडर द मुगल रूल. तो हमें ये बात याद रखनी है कि मैक्सिमम एरिया मध्य प्रदेश का अंडर मुगल रूल कौन लेकर आया था? इट वॉज एम्परर अकबर. एंड औरंगजेब की डेथ मैंने आपको बताई 1707 में हुई थी. इसके बाद से मुगल कंट्रोल बिगैन टू वीकन. यहाँ से मुगल एम्पायर जो था, इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, इट स्टार्टेड टू वीकन. नाउ कमिंग टू द मराठाज.
अगर हम स्पेसिफिकली मराठास की बात करें, सो 1720 से 1760 मराठास जो थे दे टुक कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। इसके पहले जो थे वी हैड द मुगल्स। यहाँ पे जो मुगल्स थे इसमें सबसे ज्यादा एरिया अकबर ऑफ मध्य प्रदेश अकबर ब्रॉट अंडर द मुगल रूल। नाउ कमिंग टू द मराठास, मराठास ने इसके बाद मध्य प्रदेश का कंट्रोल लिया। मोस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश वाज अंडर द मराठास, ठीक है। एंड द मराठा क्लैंस, जैसे मैंने अभी क्लैंस की बात करी, होलकर, सिंधियाज, पवास की बात करी, सो दे एस्टैब्लिश सेमी ऑटोनॉमस स्टेट्स अंडर देयर नॉमिनल कंट्रोल। सो बेसिकली वो क्या करते थे कि मराठा पेशवा के अंदर तो थे, वो अपने आप को मराठा पेशवा के अंदर बोलते थे कि हम इनके अंडर हैं, उनकी सॉवरेनिटी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट दे वर क्वाइट ऑटोनोमस। सो इसलिए उनको हम सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स बोलते हैं कि सिर्फ नाम का कंट्रोल मराठा पेशवा का था। Thus we talk about the Holkars of Indore who ruled much of the Malwa, the Bhosles in Nagpur, and the Pawars who ruled in Devas and Dhar. Also we had the Sindhyas ruling in the northern parts. अगर हम सिंधियाज ऑफ ग्वालियर की बात करते हैं, so ग्वालियर इज a northern part of मध्य प्रदेश, so ये जो है ये आपके सेमी ऑटोनॉमस स्टेट्स हैं, ठीक है। Now we come to Jhansi. Jhansi was founded by a Maratha general. Bhopal was ruled by a Muslim dynasty descended from the Afghan general दोस्त मोहम्मद खान। यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खान की बात करते हैं हम, ठीक है। तो झांसी की अगर हम बात करें, सो झांसी वाज फाउंडेड बाय अ मराठा जनरल। उसके बाद अगर हम बात करें, सो भोपाल वाज रूल्ड बाय अ मुस्लिम डायनेस्टी, और ये कहाँ से आई थी? दिस डायनेस्टी वाज डिसेंडेड फ्रॉम द अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान। जनरल दोस्त मोहम्मद खान बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो अगर हम 1700s की बात करें, 1700 टू 1750 वाले पीरियड की बात करें, सो वी हैव दोस्त मोहम्मद खान बिकमिंग इंपॉर्टेंट एंड गेनिंग प्रोमिनेंस। इसके अलावा अगर सेमी ऑटोनॉमस स्टेट्स हैं तो ये नाम और ये इनके एरियाज आपको याद हो जाने चाहिए। होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, यू हैव परमार्स ऑफ धार एंड भोसलेज ऑफ नागपुर, ठीक है। नाउ व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न पीरियड इज the year 1761. 1761 में क्या हुआ था? We had the third battle of Panipat. Third battle of Panipat हुई थी which brought an end to the Maratha expansion. यहाँ पे the Marathas जो थे they fought against an Afghan invader. And who was the Afghan invader? We all know Ahmad Shah Abdali. So यहाँ पे अगर हम देखें the third battle of Panipat that brought an end to the Maratha expansion. यहाँ से मराठा एक्सपेंशन खत्म हो गया था, मराठा एक्सपेंशन सिर्फ यहीं तक था। इसके बाद the Marathas fought the Afghan invader who was Ahmad Shah Abdali, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ज्यादा फायदा किसी को भी नहीं हुआ था, neither the Afghans nor the Marathas. यहाँ पे ज्यादा फायदा किसी को नहीं हुआ था, but we were very sure कि इसके बाद Marathas are not going to be in power. ये नहीं क्लियर हुआ था कि हु विल कम टू पावर, कौन रूल करेगा, बट ये डेफिनेटली क्लियर हो गया था कि मराठास नहीं रहेंगे यहाँ पे। एंड इंस्टेड, क्योंकि अफगान्स का भी फायदा नहीं हुआ, मराठास का भी फायदा नहीं हुआ, इंस्टेड द ब्रिटिश टुक द एडवांटेज एंड एक्सपैंडेड देयर इन्फ्लुएंस। तो हम देखते हैं कि 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, जो कि मराठास और अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, ना अफगान्स को फायदा हुआ ना मराठास को फायदा हुआ, यहाँ पे कोई तीसरा ही फायदा निकाल गया, एंड दैट वाज द ब्रिटिश. The Britishers took advantage of this and they expanded their influence. So now we talk about the British rule. अब हम ब्रिटिश रूल की बात करेंगे. So the Marathas were decisively defeated by the British at the end of the three Anglo-Maratha wars. So 1761 के बाद हम ये नहीं देखते हैं कि मराठास एकदम खत्म हो गए. So there's a gradual decline always. धीरे धीरे खत्म होता है. ऐसा नहीं कि 1761 की बैटल हो गई तो मराठास खत्म हो गए. So धीरे धीरे जो डिक्लाइन होता है, इसमें हम देखते हैं कि जैसे ब्रिटिशर्स का धीरे धीरे राइज हो रहा था, मराठास का वैसे वैसे डाउनफॉल हो रहा था. एंड मराठास और ब्रिटिश के बीच में वॉर्स हुए, एंड दीज वर द थ्री एंग्लो मराठा वॉर्स. तो अगर हम देखें, सो मराठास were decisively defeated. They were simply defeated by the British. and तीन एंग्लो मराठा वॉर के बाद, जो तीन मराठा एंग्लो वॉर 1775 टू 1818 के बीच में हुए थे, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लियर defeat थी मराठास की. And the third Anglo-Maratha war, if we talk specifically about the third Anglo-Maratha war, it resulted in the emergence of the British supremacy and most of the Madhya Pradesh came under the British influence. यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की, सो मोस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश केम अंडर द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस. एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्टेट्स ऑफ इंदौर, भोपाल, रीवा and a dozen of smaller states,
दे बिकेम प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. सो जैसे ही हमने देखा कि मराठास का रूल डिक्लाइन हुआ, ब्रिटिशर्स का रूल बढ़ रहा था, एंड आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, आफ्टर द क्लियर डिफीट ऑफ द मराठास, वी सी दैट ये रीवा भोपाल वाले जो छोटे छोटे एरियाज थे, दे बिकेम प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. जस्ट अ सेकेंड. Okay, so they became the princely states of the British India. Now, if we talk about the princely states of northern Madhya Pradesh, the princely states of the northern Madhya Pradesh were organized as Central India Agency. इसको बना दिया था, they were organized as Central India Agency. अब अगर हम बात करें, in this way, Central Provinces was a province of British India comprising of British conquest, some Mughals and Marathas in Central India. So ये जो सेंट्रल प्रोविंसेस था, ये क्या बन गया? दिस वॉज अ प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया विच हैड वो एरियाज जो ब्रिटिश ने मुगल से लिए थे, एंड ऑल्सो ऑल दोज एरियाज विच वर टेकन बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द मराठाज, एंड स्पेसिफिकली दे कवर्ड द पार्ट्स ऑफ, अगर हम आज की बात करें तो ये कौन कौन से एरियाज हैं? ये वो एरियाज हैं जो आज का मध्य प्रदेश है, आज का छत्तीसगढ़ है, एंड आज का महाराष्ट्र है. और उस टाइम पे सेंट्रल प्रोविंसेस की कैपिटल क्या थी? उस टाइम पे सेंट्रल प्रोविंसेस की कैपिटल वाज नागपुर. It was almost like an island encircled by a sea of native states, and it became the Central Provinces and Berar in 1936. ये Central Provinces काफी important हो जाता है अगर हम modern period की बात करें. Okay, now we talk about the revolt of 1857 and the Indian national movement. So I'll cover this in a next video because 1857 के बारे में थोड़ी और details आपको पता होनी चाहिए. We'll also cover details regarding the Chandels, Kalchuris, Bundelas and Baghels. We will cover this in a separate video, the Chandels, the Kalchuris, the Bundelas and Baghels. So this was all for today. We covered the history of Madhya Pradesh during the medieval period and the history of Madhya Pradesh during the modern period. This was it. Thank you so much. Stay tuned.